Good morning, students. Today we are starting our poem No Men Are Foreign. Have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? क्या आपके मन में कभी आया है कि जो व्यक्ति होते हैं, आपका देश का व्यक्ति है, आप दूसरे देश के व्यक्ति को देखते हो तो वो आपको अजीब लगते हैं, strange. We have many ways of thinking of other people as different from us as them. They may belong to a different country or speak a different language. In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all same, for we all are humans. हम बिलीव करते हैं कि ये पर्सन बिलोंग्स टू वन कंट्री, ये अलग दिखता है, अलग तरह से बोलता है, अलग तरह से उसकी बोलने का स्टाइल है, वियरिंग कपड़े डालने का स्टाइल है. लेकिन इस पोएम में पोएट जो है वो ये दिखाना चाह रहा है कि किन तरीक़ों से जो people who belong to different countries, how they are same. Remember, no men are foreign, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. The poet is saying that we should always remember no men are strange. हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो स्ट्रेंज नहीं है, अजीब नहीं है. नो कंट्री इज़ फॉरेन, कोई भी देश जो है वो फॉरेन नहीं है. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, वट एवर ड्रेस दे वेयर, बट बेसिकली दे हैव द सेम बॉडी, सेम आइज, सेम टाइप ऑफ नोज, सेम ईयर्स. सो दे हैव अ सिंगल बॉडी, ब्रीथ्स लाइक आर, दे ब्रीथ in a similar manner. The land our brothers walk upon, and we all walk on the land which is same. हम सब चलते हैं किस पे? अर्थ पे. In which we all shall lie, and after death we will be part of this earth only. तो चाहे हम कैसी भी यूनिफॉर्म डाल लें, हमारी बॉडी जो है वो एक है. We breathe the same air, we walk on the same earth. So we should remember this, that no men are strange. Here the literary device used in the second line is body breathe alliteration, because B and B sound, consonant sound is getting repeated. Now the second stanza, they too aware of sun and air and water are fed by the peaceful harvest. By wars long winter starved, their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. The poet is saying the sun, air and water is same for all type of people. सभी के लिए. अब सन जो है वो ऐसा तो नहीं है ना कि इस कंट्री में सन रेज फॉल होंगी, इसमें नहीं होंगी. सभी के लिए सन भी है, एयर भी है, वाटर भी है. दे आर फेड बाय द पीसफुल हार्वेस्ट. ऑल द पीपल ईट फूड. हार्वेस्ट मीन्स वट एवर क्रॉप ग्रोज, दे ईट दैट सेम टाइप ऑफ क्रॉप. By the wars, long winter starved, and in case there is war, people get starved. अगर शांति है तो क्रॉप होगी अच्छी, क्रॉप अच्छी होगी तो they will have food. लेकिन अगर वार है, अगर युद्ध है, तो obviously it will lead to the starvation. जैसे sometimes in winters there are many places where the people don't even get proper food to eat. Similarly, we also get starved during the war. Their hands are ours. They all have same type of hands. They work hard, they do hard work with the hand. जैसे हम मेहनत करते हैं, ऐसे बाहर के देश के व्यक्ति भी मेहनत करते हैं. A labor not different from our own. तो उनकी जो मेहनत है वो हमारी तरह ही वो मेहनत करते हैं जैसे हम लोग मेहनत करते हैं. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. As we have eyes to see, similarly all the people have the similar type of eyes. They wake, they get up, they sleep, and the strength that can be won by love. We can win each other by only means of love. अगर हम एक दूसरे के प्यार की भावना रखेंगे, एक दूसरे देश से ब्रदरहुड की फीलिंग रखेंगे, तभी हम एक दूसरे के मतलब स्ट्रेंथ को, उनके विश्वास को जीत सकते हैं. इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, वी ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड. और एक दूसरे के फीलिंग्स को हम तभी अंडरस्टैंड कर सकते हैं इफ़ वी हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर.
Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. अगर हम एक दूसरे को हेट करेंगे, इफ़ वी हेट ईच अदर, अगर हम ये फीलिंग रखेंगे कि हमें इस देश के साथ हेट्रेड की फीलिंग रखनी है, दिस मीन्स वी आर dispossessing, we are losing a feeling of brotherhood, we are betraying each other, हम एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, we are criticizing each other, तो हम अपने रिलेशंस को जो है वो स्पॉइल कर रहे हैं. इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, हम इस धरती को ख़राब कर रहे हैं. क्यों? अगर हम एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, वॉर होगी, तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू पोल्यूशन. पोल्यूशन होगा तो हम इस धरती को फिनिश कर रहे हैं. वी आर स्पॉइलिंग दिस अर्थ, वी आर स्पॉइलिंग दिस नेचर. आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस. हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, एक्चुअली क्या होता है कि वेन एवर देयर इज़ वॉर वी यूज़ वेपन्स. वेपन्स होंगे तो उससे क्या होगा? डस्ट होगी, फायर होगा, एंड वी विल अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय आवर एनवायरमेंट, नेचर. इनोसेंस ऑफ एयर, दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन. और नेचर को हम एनवायरमेंट पोल्यूशन करेंगे तो ऑब्वियसली वी आर स्पॉइलिंग आवर एयर. रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज. कोई भी व्यक्ति जो है वो फॉरेन नहीं है, कोई कंट्री जो है वो स्ट्रेंज नहीं है. सो वी शुड लिव इन द विद द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड. इट्स अ पोएम बाय जेम्स कर्का. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. थैंक